السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ کا میں اپنے چینل اونلی فور ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ چاہے جس کلاس میں ہوں، چاہے آپ میٹرک کر رہے ہوں، انٹر کر رہے ہوں، آپ نے اپنی کتاب کو مکمل کر لیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کو گرامر پڑھنے کی باری آتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو گرامر کے آبجیکٹو کوشچن کو سالو کرنے میں اپنے آپ کو وشواس رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، سو غلط ہے۔ آج میں آپ کو اردو گرامر کا بالکل بیسک بنیادی قواعد یعنی گرامر پڑھانے والا ہوں۔ صرف تھوڑا سا 10 منٹ کا وقت دیجیے، انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو بالکل چیڑ پھاڑ کر آپریشن کر کے اتنا بہترین سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ ایک بار میں آپ مکمل طور سے سمجھ جائیں گے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے پڑھیں گے کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یعنی کیا اردو قواعد، اردو قواعد کسے کہتے ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ جس علم سے صحیح پڑھنا لکھنا یا پھر بولنا آئے، اس کو ہم اس کا قواعد کہتے ہیں۔ اور یہ قواعد جو دیکھ رہے ہیں، یہ قواعد جو ہے یہ جمع ہے، آپ کو پڑھایا جائے گا واحد اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کا معنی ہوتا ہے اصول، ضابطہ، طور طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس سے پہلے جانیں گے کہ سب سے پہلے امتحان میں آپ کو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، چاہے آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے؟ آپ جواب دیں گے، وکلپ میں آئے گا 4 5 6 7، آپ دیکھیں وکلپ میں اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا۔ کتنے حصوں میں؟ 5 میں۔ اس کو نوٹ کر لیجیے ذہن میں، یقین جانیے امتحان میں یہ کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اور اردو قواعد کیسے کہتے ہیں؟ جس علم سے صحیح پڑھنا لکھنا بولنا آپ کو آئے، اس کو قواعد کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو جی اسٹوڈنٹ، اسی چیز کو انگلش میں ہم گرامر کہتے ہیں اور اسی چیز کو ہم ہندی میں بیاکرن کہتے ہیں۔ لفظ الگ الگ ہے، شبد الگ ہے، لیکن اس کا ارتھ اور میننگ ایک ہے کہ جس علم سے صحیح پڑھنا لکھنا جس انسان کو آئے، اسی علم کا نام ہے قواعد۔ علم کا نام قواعد ہے۔ چلیے، یہ آپ نے سیکھا ہے کہ قواعد کیسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان کو لکھنا پڑھنا آئے اس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ اور دوسرا سیکھا کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں 5 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ پڑھا میں۔ اب آئیے یہاں تک نمبر 1 دیکھیے، حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی یہ امتحان میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی کو کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے، کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ سنیے گا، حروف تہجی آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں الف ٹو یا کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ الفابیٹ یعنی یا اے سے لے کر کے زیڈ تک جتنے حروف ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ الفابیٹ۔ اسی طریقے سے اردو گرامر میں الف سے یا تک جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کو حروف تہجی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی الف ٹو یا یعنی الف سے یا تک کے جو حروف ہے اس کو بولتے ہیں حروف تہجی۔ دیکھیے، بہت سارے بچے ہیں جو چینل کو کھولتے ہیں کھیلنے کے لیے، کچھ پڑھتے ہیں لگن سے پڑھنے کے لیے۔ یقین جانیے اگر آپ نے ہماری ٹاپک کو صحیح معنوں میں 1 سے 2 مرتبہ دھیان سے سنا، انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ کہیں پڑھنے اور سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، حروف تہجی کسے بولتے ہیں؟ حروف تہجی بولتے ہیں الف سے یا تک کے جتنے حروف ہیں ان تمام کو حروف تہجی بولتے ہیں۔ یا پھر سمجھ لیا؟ اب آئیے، حروف تہجی کو 2 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ کتنے بھاگوں میں؟ 2 بھاگوں میں۔ حروف تہجی کو 2 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے مفرد
चलिए उससे पहले एक लफ्ज यहाँ पर आ रहा है लफ्ज, तो समझते हैं नमूद क्या है लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं? हमारी आपकी मुंह से जुबान से, हमारे आपकी जुबान से जो आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। इसी को इंग्लिश में साउंड बोलते हैं, इंग्लिश में साउंड बोलते हैं, इसी को हम हिंदी में ध्वनि बोलते हैं और इसी को हम उर्दू में लफ्ज कहते हैं। यानी इंसान के मुंह से, इंसान के मुंह से, इंसान के जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं उसको हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज माना फेंकना, हम मुंह से जो फेंकते हैं आवाज को, उसी आवाज को लफ्ज कहते हैं। एक चीज को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको फिर दोबारा सुनने की जरूरत न पड़े। याद रखिएगा लफ्ज इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है जी, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को लफ्ज कहते हैं। ठीक है ना। अब लफ्ज के बारे में, लफ्ज की कितनी किस्में हैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखते हैं हम। ये हो गया इंसान के आखिर में आपको टाइम देंगे ताकि आप आराम से आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंसान के जुबान से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं, उसको लफ्ज कहते हैं। बस ये हो गया। लफ्ज की तारीफ क्या हुआ? इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं इंशाल्लाह मैं आपको नीचे बताऊंगा, यहाँ की जगह अब नहीं है। चलिए अब आपने ये सोचा कि हुर्फ़े तहजी, तो हुर्फ़े तहजी को दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांटा गया। हुर्फ़े तहजी को दो हिस्सों में बांटा गया। नंबर एक मुफरद हुरूफ और दूसरा में है मुरक्कब हुरूफ। ठीक है। मुफरद किसे कहते हैं? मुफरद कहते हैं अलग अलग हुरूफ को मुफरद कहते हैं, जैसे कि अलिफ, बे, जीम, दाल वगैरह। यानी अलिफ से या तक जी, अलिफ से या तक जितने हुरूफ हैं अलग अलग कितने हुरूफ हैं उनको हम मुफरद हुरूफ कहते हैं। जैसे अलिफ, बे, पे, ते, जीम जितना है ना वो तमाम के हैं मुफरद हुरूफ हैं। और पूछ सकते हैं मैदान में कि मुफरद हुरूफ कितने हैं जी, मुफरद हुरूफ कितने हैं बताइए। मुफरद हुरूफ आपके 37। कितने हैं? 37। अब आया मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं जी, मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं। जैसे क्या है मिले जुले या मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। अब पूछ सकता है एग्जाम्पल दीजिए या वो कितने हैं तो बोलेंगे जैसे। एग्जाम्पल में जैसे भे, फे, थे, थे, झे वगैरह। ठीक है। तो जो हुरूफ एक मिले जैसे बे जोड़ हे बराबर भे, पे जोड़ हे बराबर फे, ते जोड़ हे बराबर थे, जो दो हरफ से मिले हुए हैं उसको बोलते हैं मुरक्कब। जो अलग अलग है उसको बोलते हैं मुफरद। तो मुफरद अलग अलग हुरूफ को कहते हैं, जैसे अलिफ टू या और मुरक्कब मिले जुले हुरूफ को कहते हैं, जैसे भे, फे, थे, झे वगैरह। ठीक है। अब पूछ सकता है ये बताइए कि मुरक्कब कितने हैं? मुरक्कब आपके हैं 15। कितने हैं? 15। दोनों को जोड़िए 7, 5, 12 का 2 हुआ और 3, 1, 4, 1, 5। अब यह सवाल मिलेगा आपको कि टोटल हुरूफ़े तहज्जी कितने हैं जी स्टूडेंट्स, टोटल हुरूफ़े तहज्जी कितने हैं? आप जवाब देंगे टोटल हुरूफ़े तहज्जी 52 यानी कि 52 है। और पूछेगा मुफरद कितने हैं तो बताइए मुफरद हुरूफ आपको सिर्फ 37 है यानी कि 37 है, और मुरक्कब कितना है तो आपको 50 यानी कि 15 है। कुल मिलाकर के हुरूफ़े तहज्जी 52 है, लेकिन डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, बांटा गया है
दो भागों में, एक मुफरद और एक मुरक्कब, एक मुफरद एक मुरक्कब। तो हो गया कि मुफरद रूप कहते हैं अलिफ से याद करके हरूफ को, और मुरक्कब कहते हैं जो मिले जुले होते हैं उसको बोलते हैं मुरक्कब। ठीक है, और मुरक्कब कितने हैं तो आपको 15 हैं, और मुफरद कितने हैं आपके 37 हैं। टोटल मुफरद तहजी की तादाद 52 है। इम्तिहान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये गुजारिश है आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको आखिर में स्क्रीनशॉट लेने का भी अवसर और मौका दूंगा। चलिए अब देखते हैं मौजू किसे कहते हैं। ये है ऊपर जो लफ्ज पढ़े थे, इस लफ्ज की दो किस्में हैं, लफ्ज की दो किस्में हैं, एक है मौजू दूसरा है मोहम्मद। एक है मौजू और दूसरा है मोहम्मद। मौजू किसे कहते हैं कि जिस लफ्ज का कोई माना हम समझ में आए उसको हम मौजू कहते हैं। मौजू किसे बोलते हैं, जिस लफ्ज का कोई माना समझ में आए उसको मौजू कहते हैं। और ठीक उसके विपरीत है, उसके जिद है, उसके अपोजिट है मोहम्मद, कि जिस लफ्ज का कोई माना समझ में न आए उसे हम मोहम्मद कहते हैं। आप देखिए मौजू ये बामाना, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं मौजू कहते हैं। देखिए स्टूडेंट मेरे पास वो सुविधा वो साधन नहीं है, वो जरिया नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँ, लेकिन बस आपकी मोहब्बत और प्यार मिली इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा कि आपकी दुआओं की बरकत से, आपके लाइक शेयर करने से इंशाअल्लाह मैं भी इस पोजीशन पे आऊँगा कि मैं बेहतरी से आने वाले बच्चों को पढ़ा सकूँ। बस मेरी आपकी गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करके दूसरे को शेयर कीजिएगा। तो मौजू बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं। उसको अपने भाषा में समझिए कि जिसका कुछ माना समझ में आता हो उसको बोलते हैं मौजू, और ठीक इसके उल्टा है जिसका कोई माना समझ में न आए उसको बोलते हैं मोहम्मद। उसको बोलते हैं बामाना है यानी बेमाना, बेमाना लफ्ज को, बेमाना लफ्ज को मोहम्मद बोलते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद माना होता है बेकार, मोहम्मद मतलब बेकार। ठीक है, एग्जांपल लगाइए आपको देते हैं मौजू का। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका 50-50 लिख रहे हैं आप यहाँ पर, आराम से लिखिएगा 15-50 हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम बोल रहे हैं रोटी, क्या बोल रहे हैं रोटी बोल रहे हैं हम, पानी बोल रहे हैं पानी, यहाँ बोल रहे हैं दाल। तो रोटी से बोलते ही आपको समझ में बात आएगी कि खाने की पदार्थ, खाने की चीज है तो रोटी। और बोलते हैं पानी, तो पानी भी पीने की चीज है, दाल ये भी खाने और पीने की चीज है। तो इन चीजों को बोलने से जो हमारे मुंह से जो आवाज निकली समझ आए कि रोटी खाने की चीज है, पानी पीने की चीज है और दाल भी एक खाने और पीने की चीज है। ठीक बोलते हैं रोटी पोटी, क्या बोलते हैं रोटी पोटी। पोटी क्या है, कुछ भी नहीं है। पानी ओनी, ओनी क्या है, कुछ नहीं है। दाल ओल, तो क्या है। तो ये जो है ना पानी, रोटी और दाल ये आपका मौजू हो जाएगा, और ओनी पोटी ओल जो हो जाएगा मोहम्मद, यानी जिसका देखिए जबान से भी निकला पानी ओनी लेके आओ, बच्चे उठो पानी ओनी लेके आओ, रोटी ओटी लेके आओ। रोटी ओटी दोनों जबान से बात निकली है, लेकिन रोटी के कुछ माना समझ में नहीं आता है उसको बोलते हैं मोहम्मद, और जिसका माना समझ में आया उसको बोलते हैं मोहम्मद। मौजू कहते हैं मौजू। इतना आपने पढ़ा। अब एक चीज मैं आपको और पढ़ा दूं तो इंशाअल्लाह बात थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने की है कि आपको उर्दू कवायद को कभी भी आप किसी के पास किसी चैनल पे आप ग्रामर को सिर्फ ऑब्जेक्टिव मत रखिएगा, समझ के पढ़ना है। अभी ये आपका चैनल था, इंशाल्लाह इसके बाद पिक्चर मुकम्मल बाकी है। एक एक बातों को मैं आपको मुकम्मल 80 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ये पढ़ने के बाद से कभी भी आप इंशाल्लाह इम्तिहान में धोखा नहीं जाएंगे, अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अगर आपको लाइक हो तो वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस बात को कहते हुए आप मुझे प्यार दीजिए कि छोटा सा लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।